साहब लिखते हैं कि during my 30 years of experience in religion and yoga, I have not seen such an eminent person who has got vast knowledge of Kundalini. Before I left Delhi, I wished to learn more about Sahaj Yoga and treatment. I came to Delhi last December. ये किसके पास गए? किसके पास गए थे आप पहले? कौन से एमिनेंट पर्सन के पास गए? हाँ? माता जी को? हाँ? आपका विचार है, फिर आपसे उससे सीखा था आपने? You learned it from me. That is all. 30 years of experience in religion and yoga. 30 years experience कैसे हुआ? हाँ? I started my work only 12 years back. Over time, yes. It's all right, doesn't matter. But you better take the tape recorder. If you have got realization even today, you can take it. All right? That's all. You see, because without self-realization, it is just a tool in your hand. But once you get realized, it's a light in your hand. All right? That's right. Let's go take it. You can take. We have got arrangements. Those who want to take my tapes can take it, but you have to be a realized soul. Otherwise, we don't give. Because what's the use of this cheap popularity? There's no need to have cheap popularity about Sahaj Yoga. You have to become. Here you cannot be just a member. We have no membership, nothing. This is a living organism. So, if you become, you have every right. But if you don't become, you have no right. Just like you have to be an Indian citizen to have some rights in this country. I wonder if we have any. But here with God's in the realm of God, if you just enter into it, you have all the rights, and He looks after you with every support, with every help. So much so that you think you have now lost the meaning of miracles. Every step will be amazed. The same person you asked something about how to cure insomnia. Kill what? Insomnia. Insomnia. And he says, I did not understand last time because 50% knowledge of Hindi. Insomnia is absolutely curable. If you have attended my lectures before this, I told you how to give balance to yourself. But in any case, you come to the center and they will tell you how to cure insomnia. It's absolutely simple. लड़के ने लिखा है कि आत्मा के साक्षात्कार के लिए जो भी फॉर्मूला या जो भी हम कर सकते हैं एक बताइए ताकि मैं एनर्जी मेरी बॉडी के साथ सिंक्रोनाइज या रेजोनेंस कर सके। मैंने पहली बार ये डिस्कोर्स अटेंड किया है। मैंने पहली बार ये डिस्कोर्स अटेंड किया। ये किस आपका है प्रश्न आपका बेटे, बहुत खुशी की बात है। इन्होंने बहुत सही बात पूछी कि मुझे आत्मा साक्षात्कार चाहिए, बस हो गया, बस इतना बहुत वो हो जाएगा। लेकिन जब ये एनर्जी आपके अंदर से बहने लग जाए तब इसके बारे में सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, क्योंकि योग तो घटित हो गया, लेकिन योग का दूसरा अर्थ होता है युक्ति, कौशलम। माने योग जानने के बाद आपको समझना चाहिए कि इसकी कुशलता क्या है, किस तरह से इसको वर्कआउट करना चाहिए। योग का एक ही अर्थ नहीं होता, योग का अर्थ एक तो हो गया कि यूनियन हो गया, और उसके बाद में उसकी कुशलता आनी चाहिए, उसकी डेप्थनेस आनी चाहिए। हो गया? आपने हमें बताया आत्मा, you have told us Atma is Paramatma, Atma is a reflection of God. Then why is it that when somebody passes away, we pray, may God grant peace to the departed soul, as if God and Atma are two different things? No. That is true, God is supreme. All right. We have to pray. I'll answer your question. It's not difficult to answer. Because when you die, that time what happens to you is the point. You just don't become only the Atma, you become the soul, you become a Jiva. So with the Atma, Jeev is still with it. And that's why there is darkness. Because of Jeev is surrounding the Atma, we say that, oh God, please give peace to this Atma or to this Jivatma, to his soul,
not to his Atma, to his soul, to Jiva, so that the person becomes a better person, and when he is reborn, he doesn't hanker. Even when he is dead, if his Jivatma is not happy or peaceful, he may hanker around, he may hover around and may create problems. That is why we say Atma in itself is Shanti itself. But it is a Jivatma, it's not Atma. There are three elements still attached to the Atma. Only the earth element and the water element drop off. The rest of it is still there. क्या इस रियलाइजेशन के लिए जो आपने कोशिश करना है, उसके लिए क्या आदमी गृहस्थाश्रम में रह कर ये सब चीजें? अरे भाई, गृहस्थाश्रम में नहीं होगा तो होएगा ही नहीं रियलाइजेशन। उल्टा हाल है सहयोग में। सहयोग में अगर आप गृहस्थाश्रम में नहीं रहेंगे तो सहयोग नहीं लाभ होगा। अगर कोई सन्यासी बाबा होते तो हम उनसे कहते भैया कपड़े बदल के आ जाए। गृहस्थाश्रम तो बिल्कुल त्यागना नहीं। ये सब आइडियाज पता नहीं कहाँ से आ गई, घरेलूपना होता है ये। इतना कंसंट्रेशन, इतना रियलाइजेशन ये आदमी को एकांत तो करने की कोई जरूरी नहीं, अपने अंदर ही सब कुछ है। एकांत की कोई जरूरत नहीं, अंदर ही घटित होता है, अंदर ही आप पाते हैं और उसमें आप जान लेते हैं कि जहाँ आप बैठे हुए हैं जिस वातावरण में, उसी में वो शक्ति आ गई। लेकिन अगर आप हिमालय पे चले जाएं, वहां भी जाकर के आप वरिष्ठ रहेंगे और वहां भी आप चाहेंगे कि अपनी झोपड़ी के आसपास कोई चीज और बना लें और किसी तरह से अपने को सुरक्षित रखें। पर यहाँ तो जब आत्मा में आप जागरूक हो गए तो सबके अंदर रहते हुए अंदर से आप शांत हैं। हिंदू धर्म में एक ही है, तो ये वैसे तो इंसान शास्त्रों में एक है, ये बहुत सारे विद्वानों का आत्मिक विकास की अलग अलग ख्यालात है। नहीं, अलग अलग कोई ख्यालात नहीं भाई साहब। क्या फर्क है? कहते हैं भाई सिगरेट पीता है ठीक नहीं है, मीट खाता है ठीक नहीं है, मांस दुनिया रखता है ठीक नहीं है, आत्मिक विकास ठीक नहीं हो सकता, वो अपने आप को समझ गए। आप बैठ जाइए, मैं हाँ बैठिए। देखिए, जो चीजें आत्मा के विरोध में पड़ती हैं वो चीजें नहीं खानी चाहिए। जो चीज आत्मा के विरोध में पड़ती है या चेतना के विरोध में पड़ती है वो नहीं करनी चाहिए। अब जब मोहम्मद साहब आए थे तो उन्होंने बताया भाई शराब मत पियो, कि तब तक सिगरेट नहीं आई थी, इसलिए वो नानक साहब बन के आया, उनका भैया आप सिगरेट मत पियो। तो अब कुछ लोग आके मुझे कहते कि इन दोनों ने ये तो नहीं कहा था कि गांजा मत पियो। तो मैंने इनसे ये कहा कि भाई सबकी तुम लिस्ट बना के दे दो जो जो पी सकते हैं। मुझे तो मालूम भी नहीं क्या क्या पीते हैं और क्या क्या करते हैं। मतलब ये तो ऐसी चीज है ना कि आ बैल मुझको मार, ये पॉलिसी अच्छे भले बैठे हुए हैं, एकदम से आपने शुरुआत कर दी पीने को, तो मुझे क्या कहा जाए। लेकिन अब ये है कि समझ लो कि हो सकता है कि मैंने एक दो बात अभी नहीं कही और हम चल बसे, तो लोग कहेंगे कि माता जी ने इसको तो मना नहीं किया था तो यही करो। अरे भाई, सीधा हिसाब ये लगाइए कि जो चीज आपने चेतना के विरोध में जाती है, माने ये कि जो आप शराब पिए वो आपके चेतना के विरोध में जाती कि नहीं जाती, सीधा है ना, तो वो ना करें। अच्छा, सिगरेट पिए उससे कैंसर होता है ना, वो आपके शरीर के विरोध में जाती है। अच्छा, रही बात गोश्त खाने की, इसके बारे में किसी ने भी नहीं कहा गोश्त मत खाओ, ऐसा किसी ने गोश्त मत खाओ, ये तो बनाई हुई चीज है, ऐसा नहीं कहा। लेकिन ये जरूर कहा है कि आप जो भी है संतुलित खाना खाएं, वेजिटेरियन है वेजिटेरियन। गोश्त खाने पर जब लोग आते हैं तो मछली, मुर्गी, घोड़ा, गाड़ी सब खा जाते हैं, और जब वेजिटेरियन पे आते हैं तो यह हद हो जाती है कि खटमलों को बचाएंगे, मस्कीटोज को बचाएंगे। भाई कोई चीज का दुख होना चाहिए, हर एक चीज का दुख होता है, इसका कोई मतलब। जैसे आप समझते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मस्कीटो को, अब मस्कीटो को क्या मैं आत्म साक्षात्कार दे?
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।